नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, dear devotees. Welcome and thank you very much for your taking out time and coming. And today we are going to start a very next verse after a three-verse series in which we saw that how in the first verse that Rup Goswami is giving these instructions of becoming a guru, and he's expecting, if somebody wants to become a guru, it's a advertisement what he's giving. Then what you should do is follow this, control the six vegas. And now somebody may ask how to control the six vegas. Then the way to control is second and third verse. You should give up unfavorable things, atyahar prayasasya, and you should take up favorable things. That is utsaha nishchayat dhairyat. And yesterday we completed our utsahat nishchayat dhairyat verse, if all of you remember. And we specifically saw three things yesterday: tat tat karma pravartanat, sanga tyagat, and satovrite. Correct? So these all things we saw. So now today we are going to start the next verse, which is another beautiful verse. And the importance of this verse is that in the third verse, Srila Rupa Goswami has said that one should give up the bad association. And there we saw the means to give a bad association is to take up good association. Correct? So this is what we saw yesterday, that some devotee asked, how to give up that bad association? So the intelligent devotee answers, it can only be given up when we cultivate association of sadhus. So that is how we can give a bad association. And by giving up that bad association, what all things will happen? It says, Sadhu Sangha will purify our heart, it will redirect our desires, and it will protect us from all the pitfalls, whatever comes, awaits in the path of bhakti. So therefore, this association is very, very important. But now how to take that association? And how to actually develop that sangha of sadhus, that is explained in this text number 4. That if you are associating with devotees, associate with 6 loving exchanges. So let us recite this shloka and try to enter into it and understand what are things Rupa Goswami suggests us. So it says, text number 4, Dadati pratigrinnati guhyam akhyati prichhati bhungte bhojate cheva shadvidam priti lakshanam. The synonymous word-to-word meaning and translation, and of course purport also later by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Dadati gives charity. Pratigrinati accepts in return. Guhyam confidential topics. Akhyati explains. Prichhati inquires. Bhungte eats. Bhojayate feeds. Cha also. Eva certainly. Shadvidam 6 kinds. Preeti of love. Lakshanam symptoms. So the translation is offering gifts in charity, accepting charitable gifts, revealing one's mind in confidence, inquiring confidentially, accepting prasad and offering prasad are the 6 symptoms of love shared by one devotee and another. So very important thing we can see here is for whom this shloka is applied for. We have to understand that first before we dwell into more. So let us see whom this shloka applies for. But before that, let us see what Prabhupada gives. Prabhupada. So Prabhupada is almost half of what we have been seeing previously. So in our previous shlokas, we took almost sometime 3 days to cover, and sometime 4 days also to cover. But this purport is very small.
Basically, it has 8 paragraphs broadly, and first paragraph talks about introduction of the 6 exchanges. Prabhupada tells about briefly about what all these 6 exchanges are. Then 2, 3, 4, 5, 4 paragraphs talks about how these exchanges are universal. And even in outside materialistic society, if somebody wants to develop relationship, then these exchanges are required, and how ISKCON is facilitating these 6 exchanges. Then in 6th paragraph, we'll see Prabhupada warns us that what is a problem if you do these exchanges with wrong person or wrong sangha. And 7, finally, Prabhupada, he gives the kind of instructions to the middle devotee. Middle devotee means Madhyam Adhikari. So Prabhupada says somebody is neophyte, somebody is very advanced, but somebody is in between. So in between devotee, what he should do? He gives instruction. And finally, in just 2 lines in the paragraph 8, Prabhupada gives the links to the next verse. So now let us see some important points, as I told you, with whom this 6 loving exchanges to be done, and some important points. Please, Prabhu, somebody can read. Sri Rupa Goswami now begins direct discussion of bhakti nourished through devotee relationships. Bhakti is practiced within a society of devotees, hence relationships matter. Verse 4 outlines 6 symptoms of priti, joyous affections that nourish bhakti. So correct. So now, Srila Rupa Goswami is more focusing on bhakti. And in that bhakti, he is talking about nourishment of bhakti. Correct. So we saw that previous shlokas, it was just accepting favorable things and rejecting unfavorable things, controlling the Vegas and all those things, correct? And we saw that how these are not directly limbs of bhakti. But now, Rup Goswami is actually beginning the direct discussions of bhakti. What all things directly nourishes the bhakti. And in that, he is telling the relationship among the devotees. Very important thing here is, which Rup Goswami is giving us hint is, by using this word, symptoms of Preeti Lakshana. Preeti means joyous affection. Means the close, the intimate, or you can say by which one feels very happy. That kind of Lakshana. So this word Preeti, just by saying this word Preeti, Rup Goswami is telling that these exchanges will not, you don't have to do it with all kind of devotees. These 6 exchanges has to be done with very few selected devotees who are having what all qualities they should have. So that explained Bhakti Rasamrita Sindhu Rupa Goswami says, Srimad Bhagavatarthanam Aswado Rasikasah Sajatiyasya Snigdhe Sadhu Sangha Satovrite. So Rup Goswami says in Bhakti Rasamrita Sindhu, with whom one should be, churning out these 6 kind of loving exchanges. He says, Srimad Bhagavatam Arthanam. If somebody wants to really understand the earth of Srimad Bhagavatam or the scriptures, Aswado Rasikasa, one should discuss it with Rasika devotees. I know who are those Rasika devotees, somebody who is, talking about gopis and all. So sometimes you think Rasika means gopis, correct? So this is not gopis. Who are those Rasika devotees with whom we are supposed to discuss? He says, Sajatiya she. Sajatiya means like-minded. Snigdhe, affectionate. And Sadhu, advanced. So these 3 kind of devotees, we are supposed to do these 6 loving exchanges with. Because these are Preeti Lakshanam. It will increase our Preeti and we'll feel very happy with this. So therefore, it's very important that you understand that we should have some devotees like that, whom we are doing this Preeti Lakshanam. First is like-minded. So what does like-minded means? Like-minded means having the same goal, sharing the same goal. That is what is important. So as we will progress in bhakti, we'll find many devotees are there. They're aspiring for going back to Godhead, and they're aspiring for Krishna service. But in those devotee circle also, we'll have very few, who are like-minded, who are aspiring for same kind of service to the lordships. So that means Sajatiya devotees. Prabhupada has used this word many, many times.
Next is affectionate. Affectionate means, okay, somebody might be Sahajatiya, but he should be my well-wisher also. So, with the devotee with whom I am going to discuss all these six things, he should be my well-wisher, and I should be his well-wisher. Like that, we should be complementing each other. That affection should be there between each other. Hmm? Should be wishing well for each other. And third, advance sadhu. Sadhu means what? Sadhu means that he is actually practicing those things, and he's advanced in bhakti or advancing in bhakti. That is important. Now somebody might be like-minded, he might be affectionate, but he has no practice at all. Then we cannot just have six loving exchanges with devotees. Hmm? So I just translated it in the meaning. It says like-minded means similar spiritual aspirations. Affectionate is compatible habits. That means they don't always criticize you. अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो, तो प्रभु ये क्या कर रहे हो, मतलब ही इज वेल विशिंग. वो बोल रहा है अच्छा प्रभु वो आप कीर्तन करो बहुत अच्छे, वेरी गुड, यू शुड डू कीर्तन, है ना. एंड यू शुड आल्सो, अच्छा प्रभु यू आर मेकिंग प्रसादम फॉर डिवोटीज, प्लीज कुक प्रसादम. Otherwise, what will happen if compatibility will not be there? One devotee wants to do for Harinam Sangeet, another devotee will say, no, no, I want to read Shastras. Then compatibility will not happen. That compatibility should be there. And advanced sadhu, sadhu means he should be having qualities, and those qualities should be approved by Shastras. So my question to all of you is, how many such friends do you have? Please write in chat box. Bolo, Proji, in this class we have 38. अच्छा पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया. Okay. So we have devotees who are sharing their heart. 2, 3, 2. Okay. Anybody else? 3. My God. 1. Myself only. 1 कौन है? ठीक है. I am supposing one with another devotee. 3, 3, 2, 1, 1. अरे. Okay. 2, 3. Great. 3. So in my studying and preparation for this verse, I came across the number which we should have to be on the safer side. And one Shubhashit verse says that one should have 5 such devotees with whom he should be having this loving exchanges. And the example is given of 6 Goswamis. See, each Goswami has 5 friends to associate with. Because sometimes, some time, we may not be able to have association, or other devotee might be busy. Suppose those who are having only one devotee, and how much these 6 living exchanges we will be able to do with that one devotee only? Very difficult, ना? उसके पास टाइम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं, उसके पास, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है. 2 है तो थोड़ा ठीक है. But actually speaking, Sadhu Sangha is so powerful, and we will see throughout the course of our discussion that it actually help us to advance very powerfully. So therefore, not much, but at least 5 we should have, with whom we can talk like this. We can have these 6 living exchanges with them, and that is how we can make so much progress. And actually speaking, if you talk about real friendship, it begins by this priti, and it grows also with priti. So we can see any friendship in this world starts with priti. Example is given of Ram and Lord Ram's and Sugriva's friendship. So what does this priti means? So priti begins when both feel some benefit from each other. This is what priti means. Panchatantra says, benefit, support, nourishes. It should not be selfishness. So जब हम लोग फ्रेंडशिप कर रहे हैं या ये 6 लिविंग एक्सचेंजेस किसी के साथ कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर सेल्फिशनेस है तो नहीं कर पाएंगे. अच्छा ठीक है, प्रभु जी ने बताया 5 लोगों को ढूंढना है, ढूंढ लेता हूँ, चलो एक प्रभु आप आ जाओ, एक आप आ जाओ, चलो प्रीति लक्षण करते हैं. ना 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 ना, एक्चुअली में हमको एक दूसरे का बेनिफिट के बारे में सोचना पड़ेगा. हमारा ये जो प्रीति होना चाहिए, सेल्फलेस होना चाहिए. इसमें सेल्फिशनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. देन ओनली वी कैन हेल्प ईच अदर. ऑफ कोर्स वी कैन सीक हेल्प. जैसे राम और लॉर्ड राम एंड सुग्रीवा के बीच में हम देखते हैं कि दोनों को हेल्प चाहिए थी. अब एक को अपना किंगडम चाहिए था, एक को अपना वाइफ चाहिए थी, और दोनों ने एक म्यूचुअल एग्रीमेंट किया.
और वो प्रीति के चले थे, वो आगे बढ़े, बट दे वर नॉट सेल्फिश। ऐसा नहीं था कि लॉर्ड राम ने बोला कि सुग्रीव दे दो, चलो हनुमान को दे दो, मैं सीता को ढूंढ के लाता हूँ, ठीक है बाय बाय टाटा, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, उन्होंने बोला मैं आपको राज्य वापस दिलाऊंगा, वाली का वध करूंगा। सुग्रीव ने भी ऐसा नहीं बोला ठीक है भगवान राज्य वापस दिला दो, फिर क्या करेंगे, फिर आप ढूंढते रहो अपने सीता माता को, मेरा तो ना गलती, आपकी गलती है, क्यों छोड़ दिया था उनको अकेले, ऐसा नहीं बोला, करेक्ट। सो दैट्स हाउ वी सी दैट देयर फ्रेंडशिप, इट वाज बिगिनिंग ऑफ दैट फ्रेंडशिप वाज प्रीति। तो सिमिलरली जब हम वो एसोसिएशन ढूंढ रहे हैं डिवोटिस का, तो हमको सीरियसली वेल विशिंग डिवोटिस का एसोसिएशन ढूंढना चाहिए, where we actually help them. So now with this small introduction, let us enter into purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Yes, Prabhu. Please, one of you can read. In this In this verse, Srila Rupa Goswami explains how to perform devotional activities in the association of other devotees. There are 6 kinds of activities. First, giving charity to the devotees. Second, accepting from the devotees whatever they may offer in return. Third, opening one's mind to the devotees. Fourth, inquiring from them about the confidential service of the Lord. 5. Honoring prasad or spiritual food given by the devotees. And 6. Feeding the devotees with prasad. An experienced devotee explains and an inexperienced devotee learns from him. This is Gohyam Akhyati Prichati. When a devotee distributes prasad, remnants of food offered to the Supreme Personality of Godhead, in order to maintain our spirit of devotional service, we must accept this prasad as the Lord's grace received through the pure devotees. We should also invite pure devotees to our home, offer them prasad, and be prepared to please them in all respects. This is called Bhunte, Bhunte, Bhojayate, Chaiva. Correct. So actually, Prabhupada, he gives definitions of these two things, the four things rather. Goyam Akhyati Prichati. But this verse is talking about 6 things. What are those 6 things? First is Prabhupada is writing giving charity to the devotees. So this is called dadati. The word dadati comes from word dan. Dan means to give, charity. So it's very important, if we are having preeti towards somebody, we should be ready to, help him, support him, and give dan. So very important thing of dan is, so there is a difference between the word which we call as help and the word which we call as dan or charity. You know what is the difference? Can anyone of you tell what is the difference between simple word when we call it dan and another time when we call it charity and help? Who can tell? गुरुजी आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन पूछ लिया आपने. ओके, charity, no expectation, great. And help? Yes, Pavan Ru. तो पढ़ा तो नहीं, लेकिन बट इन जनरल हम देखते हैं एग्जांपल्स में, तो हेल्प मतलब जब कोई हमसे मांगता है तो हम करते हैं, चैरिटी तो बिना मांगे भी हम देते हैं, आउट ऑफ आवर ड्यूटी. Okay, great. So all of you are very close. Basically क्या है, help means we are expecting something in return. या तो आप सबमिसिव हो हमारे सामने, मांगो प्रभु जी प्लीज भीख दे दो, या फिर मैं हेल्प कर रहा हूँ, बाद में मेरे को हेल्प चाहिए तो तुमको भी करना पड़ेगा, ठीक है, मीन्स समथिंग इन रिटर्न. बट यहाँ पे दान का मतलब क्या है, वी आर एक्सपेक्टिंग नथिंग इन रिटर्न. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. So when we are developing Preeti Lakshanam, first thing what एक minute. First thing what Prabhupada is telling here is giving charity to devotees means we should expect nothing in return. Of course इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर इजी दे रहे हैं तो फिर आप उसका गिफ्ट एक्सेप्ट मत करिए, नहीं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो सेकंड वर्स है. एक्सेप्टिंग फ्रॉम द डिवोटीज वॉट एवर दे मे ऑफर इन रिटर्न. वी शुड नॉट एक्सपेक्ट, बट इफ वी गेट वी शुड एक्सेप्ट दैट थिंग. ये इंपॉर्टेंट चीज है. तो ददाती प्रतिगृहणाति, मतलब अगर आपने कहीं से जगन्नाथपुरी से प्रसाद लाके दिया डिवोटीज को, तो बड़े डिवोटीज खुश हो गए. फिर अभी कोई और डिवोटी गया मायापुर और आपने उसको बोला है प्रभु प्रसाद का है,
ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अपनी तरफ से वो लेके आए तो बहुत अच्छा है। आपने किसी डिवोटी को अपने घर पे बुलाया फीस्ट के लिए, आपने उसको रसगुल्ला, गुलाब जामुन, समोसा, चटनी और पता नहीं क्या क्या खिलाया, बट उसने आपको घर पे बुलाया, उसने खिलाया चावल दाल राइस, तो हमको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रीति नहीं होना चाहिए। प्रीति मीन्स दान, और वी शुड गिव चैरिटी विदाउट एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न, है ना, एंड एक्सेप्टिंग वट एवर दे में ऑफर, वट एवर लिटिल बिट दे में ऑफर, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ददाति प्रति गृह्णाति। सेकेंड इज गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्यम आख्याति मीन्स इंक्वायरिंग। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, लेस experienced devotee inquires from more experienced devotee. Akhyati pritchati, and he explains also to others. So Prabhupada was opening one's mind to the devotees, and fourth, inquiring from them about the confidential service of the Lord. You know? So when we can open our mind to the devotees, when we are having preeti with them, when we are having trust among them. So that is what is important thing here. And inquiring about them about the confidential service of the Lord. So this confidential service of the Lord, we cannot inquire from anybody and everybody. So with whom to inquire, this will be answered in the next verse of Deshamrita. And honoring prasadam and feeding the devotees with prasad, ये तो सबको पता है, and most of the devotees are doing also. So my question to all of you quickly is, what do you think? What are the qualities which we need to develop some thick friendship in the normal circle? Please write in the chat. What are the some qualities which anybody should have to develop that thick friendship between each other? Okay, so we have humility, selflessness, seeing good in others, respect, trust, big heart, appreciate them, integrity, maturity, non-envy, trustworthy relationship, good, gratefulness, non-judgmental, investing time, okay. एक चीज मैं ऐड करता हूँ, रिप्लाइंग द क्वेश्चन व्हेन इट इज आस्क्ड व्हाट क्वालिटी वी शुड हैव, ये भी फ्रेंडशिप का इंपॉर्टेंट है ना। फ्री फ्रॉम डुप्लिसिटी, एक्सेप्टिंग क्या, ठीक है, एक्सेप्टिंग चेस्टाइजमेंट, ग्रेट। सो सी वट एवर ऑल ऑफ यू हैव सेड नाउ, रूप गोस्वामी ऑलरेडी थॉट ऑल दोस थिंग्स एंड देयरफॉर ही हैज गिवन दिस 6 लिविंग एक्सचेंजेस. Probably we might have missed something, but here he says the exchange of giving, that is dan, the dati, what quality it helps us to experience the quality of gratitude. We should feel that that friend has given me so much, correct? We missed, none of you wrote that gratitude, इसलिए रूप गोस्वामी और हम लोग नहीं है. Accepting, Pratigranati, accepting, receiving, what it will give us? Humility. Some of you wrote that, humility, है ना. Third is revealing our mind, Goyamakyati, opening our heart. It will have trust. Now that trust means it will be non-envious, and obviously we will be having mature dealings, you know, and good understanding. All those things will be inquiring, prichati, asking guidance. So this will give us the quality of vulnerability and growth. That means I have somebody. I will be having confidence in somebody, and I can also see that whether I am progressing or not. अभी खुद तो मेरे को लग ही रहा है प्रोग्रेस कर रहा हूँ, या क्या पता लग रहा है नहीं कर रहा हूँ, और स्पेशली भगवान तो मेरे को बता नहीं रहे हैं, तो कौन बताएगा? वो ऐसा डिवोटी बताएगा. प्रभु, आई ऑब्जर्व योर चैंटिंग हैज इम्प्रूव फ्रॉम लास्ट time when we met. Hare Prabhu, thank you, thank you. So that is honoring prasadam, bhung, they accept. So honoring prasadam means accepting the mercy of Krishna. So that will purify us. So prasadam literally also means food, but it can also means mercy of the Lord. So it will purify us. Serving prasadam, bhojate, feed the devotees. That means we render service to them. Selfless service. So see what all things we gave, all those things are covered in this 6 living exchanges by Srila Rupa Goswami. आप लोग मेरे साथ हैं क्या? कहीं बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं तो दूसरा तीर निकालना चाहिए हमको, जिससे प्रभु जी, ये आपने जो बोला है थोड़ा सोने है कि देने से ग्रेटिट्यूड कैसे आएगा? देने, हम क्यों किसी को देंगे?
सेल्फलेसली, बिना एक्सपेक्टेशन के, जब हमको ग्रेटिट्यूड होगा कि उस डिवोटी ने इतना सब कुछ किया है मेरे को, है ना, दैट्स अच्छा, व्हाई आई मतलब कि हेल्प। वो ग्रेटिट्यूड है तब हम देते हैं ऐसा। लेकिन फिर वो हाँ, बाकियों को मुझे सब फिट नहीं हुआ, मतलब बाकियों ने तो ऐसा एक्सप्लेन किया कि ये हम करते हैं तभी क्वालिटी आती है, जैसे ऑनरिंग प्रसादम, प्यूरिफिकेशन, हमने बताया ना, कुछ रिवील करते हैं माइंड तो ट्रस्ट बढ़ता है। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि वो पहले क्वालिटी होगी, फिर वो हम वो क्या कहते हैं एक्टिविटी करेंगे। तो ये जो हाँ, रिलेशन है कैसा है, मतलब कि अगर क्वालिटी वो होने से वो करते हैं या फिर वो करने के अगर बाद क्वालिटी आती अगर वो नहीं भी है तो भी आप देखेंगे, जब हम देना शुरू करते हैं ना तो धीरे धीरे हमको ग्रेटिट्यूड आता है। हम्म, जब हम सर्विस रेंडर करना शुरू करते हैं, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि आई एम गिविंग वॉट एवर लिटिल बिट आई हैव, तो वो ह्यूमिलिटी आती है हमारे अंदर। और ह्यूमिलिटी आने से पहले क्या आता है, ग्रेटिट्यूड आता है। कि एक्चुअली मैं डिवोटीज ने इतना सब कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, मैं कितना दे रहा हूँ। लाइक राधे श्याम प्रभु रोट वन मेल दैट एवरीबडी शुड गिव इजी। सो ही रोट दैट इफ यू टेल आर डिवोटीज कि हमारे फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर पास आउट होने तक हमारे ऊपर कितना मॉनिटरली भी अगर एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है ना। तो उसके चलते क्या है, डिवोटी को फील होता है कि आई शुड गिव आल्सो, है ना। एंड दिस गिविंग ऑलवेज मीन्स दैट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। जैसे मैंने बताया ना, हेल्पिंग नहीं है ये दान है। एक्सपेक्टिंग नथिंग इन रिटर्न, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट दैट डिवोटी इज ऑलरेडी डूइंग सो मच फॉर मी। So these qualities are required to develop relationship with each other. ठीक है, चलेगा। थैंक यू। सो लेट अस गो अहेड। सो सो नाउ व्हाई दिस एक्सटर्नल एक्सचेंजेस आर रिक्वायर्ड। कोई बोल सकता है प्रभु जी मैं तो हृदय में डिवोटीज को बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, क्या बताऊँ, बस डिवोटी डिवोटी सोचता रहता हूँ, कृष्ण के बाद डिवोटी का नाम चैंट करता हूँ। नहीं, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इसलिए बोला जाता है, प्लीज समबडी कैन रीड। Preeti is an inner emotion, but it must be expressed externally. Without external expression, love is inaccessible, not understandable, not realizable. Therefore, externals are not just rituals, they are the medium through which love flows. Correct. So this Chaitanya Charitamrita says this thing, you know, that preeti is inner emotion of affection, but it must express externally, and that is when we do not express that preeti externally by these six loving exchanges, then love is inaccessible. Inaccessible मतलब उस व्यक्ति को लगेगा ही नहीं कि आपकी उसके प्रति प्रीति है। Not understandable. He will not understand कि आपके मन में क्या चल रहा है। And not relishable. Not relishable मतलब it will not touch the heart of both the devotees. So therefore externally doing also is very very important. जैसे मैं आपको बताता हूँ, I am rather very poor in giving gifts, है ना, or other things. But the point is we should develop these habits. Sometimes devotees forget birthdays. I too forget birthdays. But we should try to learn and wish birthdays, give them some gifts whenever we meet. है ना. So this is very very important thing, because by that our preeti, that loving exchanges will grow. At least with those minimum 5 devotees, or of course if we have 2 3 that is not a problem, I know, but we should try to have some devotees who are doing like that. And these exchanges, Prabhupada, right, it's applicable throughout the universe in all kind of exchanges. So Prabhupada gives this very beautiful explanation. ये कॉमिक दिख रहा है आपको, ये प्रभुपाद का ही कॉमिक है ना। प्रभुपाद बोलते हैं what is the universal impact of this living exchange ISKCON is making, and Prabhupada says even in ordinary, ठीक है, कोई पढ़िए कॉमिक पढ़िए। Yes. Even Yes. in even in ordinary social activities, these six types of dealings between two loving friends are absolutely necessary. I wish to contact another businessman. He arranges a feast in a hotel. This is what I wish to do. तो बेसिकली प्रभुपाद गिव्स एन एग्जांपल ऑफ अ बिजनेसमैन, करेक्ट। तो वैसे ही अगर हमको किसी डिवोटीज के साथ लविंग एक्सचेंजेस करना है, या हमको उसके साथ अपना कृष्ण कॉन्शियसनेस शेयर करना है, तो हमको ये 6 लविंग एक्सचेंजेस करने शुरू करने चाहिए। दो चीजें, एक हमारे पास ऐसे डिवोटीज हैं जिनके साथ हम एक्सचेंजेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। अगर नहीं है या कम है तो और डिवोटीज हमको ढूंढने चाहिए।
और उन डिवोटीज के साथ पहले हमको देखना चाहिए लाइक माइंडेड, अफेक्शनेट और साधु डिवोटी है, और फिर उसके साथ हमको ये 6 लिविंग एक्सचेंजेस शुरू करने चाहिए. When we will start these 6 living exchanges, then we will be able to develop that preeti among each other, that closeness of relationship with each other. प्रभुपाद बोलते हैं ना, बिजनेसमैन कैसे शुरू करते हैं, चलो आओ आप डिनर पे आ जाओ, है ना, और फिर डिनर पे वो लोग डील क्लोज कर लेते हैं. करेक्ट, तो ऐसा होना चाहिए. तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पे, पढ़िए, कंटिन्यू करिए प्रभु. Thus whenever there is a Thus, wherever there is a dealing of preeti or love in intimate dealings, these 6 activities are executed. In the previous verse, Srila Rupa Goswami advised that one should renounce worldly association and keep company with the devotees. Sangha tyagat sato vritte. करेक्ट, अगर हमको डिवोटिस का कंपनी रखना है, बैड एसोसिएशन छोड़ना है, तो डिवोटिस का एसोसिएशन होना चाहिए ना. अब डिवोटिस का एसोसिएशन कैसे मिलेगा? ये 6 एक्सचेंजेस करने से मिलेगा. सो इसलिए ये कनेक्शन हमको बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि एक्चुअली में मेरे बहुत सारे जो अनफेवरेबल चीज़ें हैं, आई कैन गिव अप इफ आई हैव एसोसिएशन ऑफ डिवोटिस, और वो एसोसिएशन ऑफ डिवोटिस मेरे को अपने साथ विकसित करना है, तो ये 6 एक्सचेंजेस करने हैं. नाउ समटाइम व्हाट हैपेंस इज, हम मान लीजिए एक जगह पे थे, वहाँ पे हमारे साथ कोई ऐसे डिवोटीज थे जिनके साथ हम 6 एक्सचेंजेस कर रहे थे. अभी हम दूसरी जगह चले गए, वहाँ पे वो डिवोटी नहीं मिल रहा है, बट द पॉइंट इज कि कहीं पे भी हो वो डिवोटी, हमको एक्सचेंजेस कंटिन्यू करने चाहिए. मान लीजिए आप पहले कानपुर में थे, फिर कहीं नोएडा चले गए, लेकिन फिर भी हमको वो एक्सचेंजेस वो डिवोटीज के साथ करते रहना चाहिए इन वन फॉर्म और द अदर. Otherwise, what will happen if you don't do these 6 exchanges, then our friendship will be material friendship. So, and we might be doing the activities of these 6 kind of things, but they may not be spiritual friendship. So, इसलिए हमको पता होना चाहिए कि जब भी हम डिवोटिस के साथ ये एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसमें प्रीति बहुत इंपॉर्टेंट है. और प्रीति किसके लिए? भक्ति में ग्रोथ के लिए. वो हमने बताया ना, व्हेन वी आर फीलिंग फॉर ईच अदर्स ग्रोथ इन भक्ति, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Therefore, जब भी हम ऐसा फ्रेंडशिप कर रहे हैं, वेदर इट इज मटेरियल फ्रेंडशिप और स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप, है ना, तो उसमें डिफरेंस यही है कि स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप में वी आर डूइंग ऑल द 6 एक्सचेंजेस टू हेल्प ईच अदर ग्रो इन स्पिरिचुअल लाइफ. बट मटेरियल फ्रेंडशिप में क्या है? वी आर डूइंग दिस 6 एक्सचेंजेस जस्ट फॉर गेटिंग द वर्क डन. सो दिस इज द डिफरेंस. Somebody can read ordinary friendship and devotional friendship. What is the difference? Ordinary friendship gift to impress, devotional friendship gift to express bhakti, meals for bonding, devotional friendship prasad for purification, ordinary friendship sharing personal plans, devotional friendship sharing heart in Krishna service, ordinary friendship strategic questioning, devotional friendship surrendered questioning, ordinary friendship transactional, डिवोशनल से भी ट्रांसफॉर्मेशनल. करेक्ट. तो ये आप देख सकते हैं एक्चुअली, जो भी हम कर रहे हैं अभी डिवोटीज के साथ भी, जिसने बताया आपके पास 1 2 3 4, किसी के पास 5 डिवोटीज भी हो सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चेक करते रहें कि वो फ्रेंडशिप में 6 लविंग एक्सचेंजेस हो रहे हैं, लेकिन उसका गोल होना चाहिए क्या? टू प्योरिफिकेशन इन भक्ति एंड टू ग्रो इन भक्ति और नरिश और भक्ति, ये गोल होना चाहिए, है ना. क्योंकि ऑर्डिनरी लोग भी गिफ्ट देते हैं प्रेस करने के लिए, अगर डिवोटीज भी गिफ्ट देने लगे हम प्रेस करने के लिए, तो प्रॉब्लम हो जाएगा. हमारा ओरिएंटेशन हमारे हार्ट का एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना. प्रसादम प्योरिफिकेशन के लिए, ना कि सिर्फ ठीक है भाई चलो एक बढ़िया फ्रेंडशिप हो जाएगा, वो कर जाएगा कहीं वृंदावन तो मैं उससे प्रसाद मंगवा लिया करूंगा, आज मैं उसके लिए प्रसाद ले आता हूँ. ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना. वैसे ही शेयरिंग करने के लिए, क्यों शेयरिंग करना है? इसलिए नहीं कि ठीक है मैं जान लूंगा कि क्या उसका प्लान है, तो मैं भी अपना प्लान ऐसे कर लूंगा. प्रभु जी वो प्रीचिंग कैसे अच्छे से कर रहा है, मैं भी सीख लूंगा प्रीचिंग. ऐसा नहीं है. शेयरिंग हार्ट इन कृष्णा सर्विस, है ना, व्हाट ही इज एक्सपीरियंसिंग बाय दैट सर्विस. क्योंकि हमारा ये जो रिलेशनशिप होता है, एक्सचेंजेस होते हैं, बहुत सुपरफिशियल लेवल पे भी हो जाते हैं कभी कभार, और हमको लगता है कि प्रभु जी मेरा है वो फ्रेंड है जिसके साथ मैं कर रहा हूँ दताति प्रति गृणाति गोयमा कहते. ना 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 ना, उसका गोल पता होना बहुत जरूरी है. सो ये गोल अगर हमको पता नहीं रहेगा, एंड वी आर डूइंग समथिंग एंड वी आर कॉलिंग इट स्पिरिचुअल लविंग एक्सचेंजेस, देन इट विल नॉट हेल्प अस इन लॉन्ग रन. ठीक है. सिमिलरली व्हेन वी आर आस्किंग हिम सम क्वेश्चन, तो इसके लिए नहीं कि मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूँ क्योंकि वो बड़ा इंटेलिजेंट है, उस सेवा में मेरी सेवा बहुत अच्छे से हो जाएगी. नहीं 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 नहीं, है ना. इट शुड नॉट बी जस्ट आस्किंग सम स्ट्रेटेजीज.
We should be asking, surrender, questioning about our bhakti also. Ki Prabhu, I am facing this challenge, or I want to do this service to Krishna. How I can do? You did it very nicely. ऐसे करके हमारा हार्ट का ओरिएंटेशन. एंड डीलिंग शुड नॉट बी ट्रांजैक्शनल. ट्रांजैक्शनल मतलब जब तक वो कर रहा है तब तक मैं करूंगा, अपनी तरफ से तब नहीं करूंगा ज्यादा. नहीं, इट शुड बी ट्रांसफॉर्मेशनल. We should experience some transformation when we go through it. Any question, Prabhuji? ये प्रभु जी जो आपने वो बताया, शेयरिंग पर्सनल प्लान्स एंड स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन, हैंड रेस करिए, हैंड रेस करिए. प्रभु जी हाँ, ये शेयरिंग पर्सनल प्लान्स और स्ट्रेटेजिक क्वेश्चनिंग, इसमें डिफरेंस और नहीं है? आपने दोनों वो सार तो सेम ही बताया कि हमें हार्ट खोल के बात करनी चाहिए, वो अपना मोटिव नहीं रखना चाहिए कि मुझे टीचिंग सीखनी है या स्किल सीखनी है. करेक्ट. तो बहुत बार हमारा जो रिलेशनशिप होता है डिवोटीज के साथ, वो खाली सीखने के लिए दे देता है. अच्छा ब्रो, आपने वहाँ पे ये करा, मेरे को बता दो कैसे किया. आपने वो जॉब क्रैक की, मेरे को बता दो कैसे किया. आपने वो एग्जाम क्रैक किया, मेरे को बता दो. ए हाथ ऊपर रखो. मेरे को बता दो कैसे किया. करेक्ट. तो ये क्या हो गया, ये खाली स्ट्रैटेजी जानने के लिए हो गया. गुह्यम आख्याति पृच्छति. बट इट शुड बी नॉट फॉर जस्ट स्ट्रैटेजी जाना. हमारा हार्ट शेयरिंग होना चाहिए, सो दैट हाउ आई कैन इम्प्रूव इन माई भक्ति. मेरे को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको क्या वो प्रॉब्लम आई, कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. ये हमारे एक्सचेंजेस होने चाहिए इन अ मूड ऑफ लर्निंग, नॉट जस्ट लर्निंग सम स्ट्रैटेजीज. ठीक है. नहीं, मतलब मैं पूछा था बेसिकली, मतलब ये जो सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट था, उसमें डिफरेंस क्या है शेयरिंग पर्सनल प्लान्स और स्ट्रेटेजिक क्वेश्चनिंग? ये पूछ रहा था. शेयरिंग पर्सनल प्लान्स मतलब उसमें डिफरेंस ये है कि कभी कभार जब हम आते हैं भक्तों के बीच में, तो हम उनको ये बताते हैं मैंने ये किया, मतलब अपनी सेवा के बारे में बता देते हैं. बट वी डू नॉट शेयर आवर हार्ट अबाउट कृष्णा. लाइक आई कैन टेल यू, ठीक है ब्रो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, मैं पिछली बार गया था, वो स्टिकर वाली स्कीम बड़ा अच्छा चल गया था. और प्रूफ फिर ना, मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन का वो स्टेशन पे बहुत अच्छा हो रहा था, ट्रेन के अंदर में हम गए थे, एसी कंपार्टमेंट, बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन. ये क्या है, प्लान्स शेयरिंग कर दिया बस. या इस बार मैं कोशिश कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा करूंगा. ये सब करना चाहिए, ये तो ऑर्डिनरी फ्रेंडशिप में भी शेयर करते हैं. बट शेयरिंग आर हार्ट, हार्ट शेयर नहीं करते हैं. कि प्रभु, लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट एंड आई डिड, आई फेल्ट मोर that how Prabhupada has done so much for me. So because of feeling of that gratitude, I felt I should devise some new ways of distributing books out of gratitude of Srila Prabhupada. तो ऐसे करके वो डिवोटी को क्या होना चाहिए, हार्ट शेयर करना चाहिए, ना कि सिर्फ प्लान शेयर करना चाहिए. ठीक है. यस ब्रो. हरे कृष्ण जी. तो जी आई हैव अ डाउट कि जैसे आपने बताया कि फ्रेंडशिप शुड बी सजाती है, तो सजाती मीन्स दैट इट शुड बी विद, इट कैन बी इन डिफरेंट आश्रम्स आल्सो और विद इन सेम आश्रम आल्सो. आश्रम में क्या है, डिफरेंट आश्रम भी हो सकता है, सेम आश्रम भी हो सकता है, उसमें कोई नहीं है. आश्रम तो अलग बिकॉज चीज. एस्पिरेशंस उसमें लिखा था ना, सिमिलर एस्पिरेशंस. एस्पिरेशन तो दोनों का भगवत धाम, प्रेम प्रेम भक्ति है ना. हम्म. बस. एंड प्रू जी, जैसे आपने बताया कि इवन दो जब हम प्लेस चेंज कर लेते हैं उसके बाद भी हमें फ्रेंडशिप कंटिन्यू करना चाहिए, तो हाउ दैट कैन बी डन, लाइक व्हेन देयर इज proximity is less, then we can exchange our thoughts and we can like exchange gifts, prasad. but जब डिस्टेंस बढ़ जाती है तो वो चीज कम हो जाती है जनरली. हाँ, तो अभी ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन प्रसाद देना है. बट हम लोग सोच सकते हैं, जैसे बहुत सारे डिवोटीज हैं, मैं देखता हूँ, जैसे हमारे मतलब इन आर माई लाइफ आई हैव सीन लाइक प्रेमानंद प्रभु इज इन कानपुर एंड रेवतीपति प्रभु इज इन पुणे. सो वेन एवर रेवतीपति प्रभु ही फाइंड्स दैट सम डिवोटीज गोइंग फॉर सम मीटिंग और समथिंग, और उनको पता है प्रेमानंद प्रभु यार, तो उनके वो प्रेमानंद प्रभु के लिए कुछ भेज देते हैं, है ना. वैसे ही आचार्य रतन प्रभु. तो हमको फिर वो सोचते रहना चाहिए कि कब मैं उस डिवोटी के लिए कुछ प्रसाद भेज दूंगा स्पेशल. और कॉल तो हम कर ही सकते हैं, आजकल इतना अच्छा वो मीडियम तो है ही, वीडियो कॉल कर सकते हैं. तो ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव. ददाति प्रति गृह्णाति भी कर सकते हैं. वी कैन टॉक टू other devotees, always.
हरे कृष्णा। अब मुझे इससे जाती है डिवोटीज से मुझे हमको थोड़ा सा समझना था। और लाइक मुझे जैसे कि अपन हम लोग बाहर कुछ लाइक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या फिर प्रीचिंग करते हैं या फिर मुझे किसी को कर्फ्यू कल्टीवेट करते हैं, तो मुझे उनका मुझे अलग अलग लाइक लाइक मुझे डिवोटीज नहीं होते अक्सर वो लोग। तो मुझे इस वजह से समझा, मतलब उनको कुछ उनको भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और भी थोड़ा डाउन नीचे जाती है ऐसा। तो मुझे क्या वो सही है मुझे ऐसे करना, उनसे एसोसिएशन करना, या फिर लाइक लिमिटेड करना चाहिए? ओके, नहीं देखिए, जो आप बता रहे हैं, जिन लोगों के साथ हम एसोसिएट कर रहे हैं, हम एक तरीके से उनको प्रीचिंग कर रहे हैं, ठीक है। यस। लेकिन ये जो सिक्स लविंग एक्सचेंजेस है, ये हमारे नरिशमेंट के लिए है ना। तो हमारा नरिशमेंट के लिए क्या यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमको भक्ति में कुछ चीजें हैं जो फेवरेबली फॉलो करनी है। अब वो फेवरेबल चीजों को फॉलो करने के लिए या अनफेवरेबल चीजों को गिव अप करने के लिए हमारे अंदर बहुत कम शक्ति है। तो उसके लिए क्या तरीका बताया रूप गोस्वामी ने, अरे एसोसिएशन अच्छा ले लो। आप अनफेवरेबल चीजों को अवॉइड कर पाएंगे, फेवरेबल चीजों को फॉलो कर पाएंगे। अब वो एसोसिए हाथ ऊपर रखो अपना, दिखते नहीं है यार आप लोग आंसर करते हुए। तो अभी वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अगर हमको फेवरेबल चीज़ों वो एसोसिएशन लेना है, तो एसोसिएशन कैसा एसोसिएशन होना चाहिए वो इस वर्ष में बता रहे हैं। क्लोज एसोसिएशन होता है ये, एकदम एक तरीके से बोला जाए तो सेलेक्टेड लोगों के साथ ये एसोसिएशन है। तो ये एसोसिएशन अगर हमारा होगा, तो हम जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं भक्ति में, फेवरेबल अनफेवरेबल एंड अल्टीमेटली लव ऑफ गॉड, उसमें सहायता मिलेगी। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि बाहर के लोगों के साथ हम जा रहे हैं, सो दैट मीन्स वी आर डूइंग प्रीचिंग एक्टिविटीज। प्रीचिंग एक्टिविटीज लाइक, ठीक है वहां तो आपको जाना है गिव, लेकिन अगर कोई सिर्फ प्रीचिंग प्रीचिंग करता रहेगा और ये नहीं करेगा, तो उसका ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हम्म। नहीं होगी। तो उसको दोनों चीजें देखना है, हम्म। ठीक है। यस हम्म। कंचन प्रभु, आपके पीछे से सूरज उग रहा है इसलिए आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, सूरज को बोलो आगे से उगे। हरे कृष्णा पूजी। पूजी लाइक यू टोल्ड अबाउट इस जातिया कि उसमें दे हैव सेम गोल एंड हैव अफेक्शनेट एंड वेल विशिंग। तो पूजी लाइक सेम गोल तो ऑलमोस्ट सभी ड्यूटीज का गोल सेम ही है। दे ऑल वांट टू प्लीज शिला प्रभुपाद एंड सर्व in the mission of Srila Prabhupada, and duties are well wishing also. So how to, मतलब जैसे आपने कहा कि एटलीस्ट 5 ड्यूटीज होनी चाहिए, तो अगर इस कैटेगराइज देखें तो ऑलमोस्ट बहुत सारे ड्यूटीज इसमें होंगे, इसमें आ जाएंगे। तो वो कैसे कैटेगराइज करेंगे लाइक? आपको स्वीट में क्या अच्छा लगता है? आपको स्वीट में क्या अच्छा लगता है? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन अच्छा लगता है। हाथ ऊपर रखिए, ठीक है। और किसी कोई डिवोटी है जिसको हलवा अच्छा लगता है, बटर हलवा या गाजर हलवा या फिरनी, ऐसा कुछ? ये सारे अच्छे लगते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको मिल रहे हैं बटर डिवोटीज। हलवा फिर। बटर हलवा अच्छा लगता है, इतने सारे भक्तों को होटल। तो अब आप बताओ, आप सोचा कि आज है ट्यूसडे, आज हमारी भक्ति शास्त्री क्लास खत्म हो रही है, चलो फीस्ट करते हैं। और आपका मन है कि गुलाब जामुन बनाए, लेकिन इतने सारे डिवोटीज हाथ उठा रहे हैं बटर हलवा के लिए, तो आप इनके साथ जाके गुलाब जामुन कैसे बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि उनका मन बटर हलवा बनाने का है और यस आपका मन पूजी। गाजर का हलवा बनाने का, सॉरी, गुलाब जामुन बनाने का है। तो ये सहजातियाँ नहीं हुए, करेक्ट। तो एक्चुअली ब्रॉडर टर्म्स में अगर आप देखेंगे कि आप बोल रहे हैं कि यस सबको कृष्ण प्रेम चाहिए, ये चाहिए, ये क्या है, एक इम्पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। बट आप पर्सनली देखेंगे विद इन कृष्ण प्रेम देयर इज सो मच वैरायटी, देर आर सो मेनी वेज इन विच कृष्णा इज सर्व्ड एंड कृष्णा कैन बी प्लीज्ड, करेक्ट। तो हर कोई डिवोटी का अपना अलग अलग एक फेवरेट चीज होता है जिससे वो कृष्ण को सर्व करना चाहता है। तो हमारा जो लाइकिंग है, जो इंक्लिनेशन है, उस लाइकिंग और इंक्लिनेशन का जो दूसरा डिवोटी होगा वो होगा सहजातीय। समझ में आया? यस पूजी। लेकिन नहीं तो पूजी, क्या होगा, फीस्ट में हम लोग लड़ाई करते रहेंगे, गुलाब जामुन बनाना है कि बटर हलवा बनाना है, ऐसा। फिर इस हिसाब से हम लोग ये भी सुनते हैं कि एवरी जीवा इज इंडिविजुअल, तो सबका कुछ ना कुछ इंडिविजुअलिटी रहेगा। तो हाँ तो लाइक मतलब हम सबकी लाइकिंग्स पूरी तरह से मैच नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन वो आपकी लाइकिंग के साथ तो जा रहे हैं ना। हम्म। इंडिविजुअलिटी मतलब उसको जो रेसिप्रोकेशन मिलेगा वो अलग मिलेगा, लेकिन लाइकिंग कैन बी सेम। लाइक जो सारी गोपीज हैं, दे वांट टू प्लीज कृष्णा इन माधुर्य रस,
but the reciprocation what they are experiencing is at different levels. So इसलिए ये वो सब इंडिविजुअल है. तो लाइक माइंडेड मतलब कि वी वांट टू हैव सर्विस ओरिएंटेशन ऑफ सेम काइंड, सेम सर्विसेज, और वी वांट टू रेंडर अचीव सेम काइंड ऑफ गोल, और वी वांट टू डू सम सर्विस टुगेदर, सेम काइंड ऑफ सर्विस, वो लाइक माइंडेडनेस होगी. ठीक है. Yes, thank you, Puji. यस पवन प्रभु. प्रभु जी, आपने अभी जस्ट बोला उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन आया कि आपने जैसे ये एग्जांपल दे दिया गुलाब जामुन का. अगर इस तरीके से देखेंगे तो प्रभु जी हमारे डिफरेंट दोस्त डिफरेंट जगह रहने, हर ऐसे तो फिर प्रभु जी कभी भी सजातियां हो ही नहीं सकते, उसमें तो हर दो के बीच में डिफरेंस रहेगा ही रहेगा. मतलब जब गोपी का आपने एग्जांपल दिया, लेकिन एनालॉजी दिया जाता है ना, तो एनालॉजी को एक्सपेंड नहीं करना चाहिए, उससे प्रिंसिपल लेना चाहिए. वी शुड लर्न हाउ टू लर्न द शास्त्रस. सो इन द शास्त्रस बोला गया कृष्ण सूर्य समा. अभी मैं बोलूं प्रभु जी अगर कृष्ण के सूर्य के समान है ना, मैं उसके पास जाऊंगा मैं जल जाऊंगा, फिर मेरे को नहीं जाना है कृष्ण के पास. कैसा लग रहा है? So let us become intelligent and try to understand the principle which is explained, like-mindedness. Do not take the literal meaning of the things whenever some examples or some analogies are given like this. चैतन्य चंद्र बोलते हैं कि एनालॉजीज कैसे होते हैं, रबर बैंड के जैसे होती है. रबर बैंड को ज्यादा खींच दोगे तो टूट जाएगी. तो वैसी एनालॉजी को आप ज्यादा एक्सपेंड करके हर एक जगह लगाने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वो मीनिंग ऑब्सक्योर हो जाएगा उसका. ठीक है. बट एक चीज बस थोड़ा पूछना चाह रहा था प्रभु जी, जो ये जो सजातिया है इसको हमको प्रभु जी अपने कृष्णा कॉन्शियस के मतलब जो अंदर के भाव है उस टर्म्स में देखना चाहिए कि हमको क्या पसंद है, या फिर सर्विसेज के टर्म्स में देखना चाहिए कि हम भी पिचिंग करना पसंद करते हैं वो भी, या फिर हमको इस पे पसंद करना चाहिए कि मतलब जिस तरीके से आपका भक्ति नरिश हो सके, यू आर एबल टू डू फेवरेबल आइटम्स टू कृष्णा एंड यू आर एबल टू अवॉइड अनफेवरेबल आइटम्स टू कृष्णा, वो जिस तरीके से कर सके उस भाव से देखना चाहिए. गोल मैंने आपको बताया ना, गोल क्या है हमारा? गोल है फेवरेबल आइटम्स फॉलो करना है, अनफेवरेबल आइटम्स को अवॉइड करना है. करेक्ट. तो वो गोल को यस लेके चलना है तुमको. प्रभु जी, ये एक बस क्वेश्चन इसमें, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, मतलब क्या कहते हैं एक तरीके से, जैसे हम पूछना चाह रहा था कि मतलब हम जगह रूप में आप देखेंगे रूप गोस्वामी खुद डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. वी कैनॉट मेक एवरीथिंग वन, दैट्स व्हाट द फिलोसफी इज, पर्सनलिज्म. ठीक है. सो लेट अस गो अहेड. अब मैंने बहुत बोले, अब आप लोगों को बोलना की बारी है. अब आप लोगों को एक एक्सरसाइज करनी है. एक्सरसाइज क्या करनी है कि अभी हम आप लोगों को 3 ग्रुप में डिवाइड करने वाले हैं. आपके पास 5 मिनट का टाइम है. आप उस ग्रुप में डिसाइड करिए कि अगर आप लोग जीबीसी हो इस्कॉन मंदिर के, है ना, और आपको टास्क दिया गया है आपके फर्स्ट ग्रुप को कि ददाति प्रति गृहणाति आपको प्रिंसिपल अपने मंदिर में कराना है, तो आप कौन कौन सी चीज़ें अपने मंदिर में करना चाहेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ददाति प्रति गृहणाति प्रिंसिपल फॉलो हो. दूसरा, गुह्यम आख्याति पृच्छति. अगर आपको गुह्यम आख्याति पृच्छति करवाना है अपने मंदिर में, तो कौन कौन सी चीजें आप इंप्लीमेंट करेंगे जिससे गुह्यम आख्याति पृच्छति. भूंगते भोजते चैव. अगर आपको प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन और ऑनरिंग से कराना है, चीजें कराना है, तो कौन कौन सी चीजें आप करेंगे आपके मंदिर में, वो आपको लिस्ट डाउन करना है. तो एक तो हम सीधा बोलते हैं प्रभु जी गिफ्ट दे दो, गिफ्ट ले लो. नहीं नहीं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे वो गिफ्ट का एक्सचेंज होगा. गुह्यम आख्याति प्रभु जी जाके बस शेयर करते नहीं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं वेयर वी कैन शेयर द हार्ट्स एंड लिसन फ्रॉम अदर्स. एंड भूंगते भोजते चैव. क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम भक्तों के प्रसाद, अलग अलग प्रसाद बढ़ सकता है, भक्तों को प्रसाद मिल सकता है. तो ये आपको करना है. ऑल ऑफ यू विल बिकम अ जीबीसी नाउ. ठीक है. एक्सपीरियंस करिए कि जीबीसी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. है ना. सो लेट अस डिवाइड दिस ग्रुप. सो आप लोग समझ गए ना कि कैसे करना है. और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कौन सा ग्रुप कौन सा है. एक ग्रुप में अराउंड 12 से 13 जीबीसी. हमारे पास ऐसे इस्कॉन में 24-25 जीबीसी है, लेकिन आप लोग 12 से 13 रहेंगे. कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका प्रमोशन हो गया. देखा. तो चलिए, हरे कृष्णा. आपके पास समय है सिर्फ 5 मिनट का, 5 नहीं 3 ही मिनट का समय, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत कम है हमारे पास. चलिए, हरे कृष्णा. ज्वाइन कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आ रहा होगा. प्रभु जी, आप लोगों का फर्स्ट ग्रुप है, चर्चा करना है अपना वो बनाना रिप्रेजेंटेटिव, और उसको ये सारी चीजें डिस्कस करिए, और वो सब लिस्ट डाउन कर सकता है एंड देन ही कैन लेटर ऑन शेयर
इन द चैट आल्सो एंड इन द ग्रुप आल्सो। ठीक है, ददाति प्रतिगृह्णाति, तो आप लोग जीबीसी है ददाति प्रतिगृह्णाति इम्प्लीमेंट कराना टेम्पल में। क्या क्या चीजें करेंगे आप, देखते हैं। हरे कृष्णा। ये पॉइंट शेयर करेंगे क्या? हरे कृष्णा पवन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, 3 मिनट प्रभु लिख दो, इसमें चैट में लिख दो। ये इसका मीनिंग क्या था? ददाती प्रतिग्रहण थी का? वो मजाक मत करो, 3 मिनट है। जल्दी बोलो। अरे गिविंग, गिविंग क्या कहते हैं, गिफ्ट्स एंड रिसेप्टिंग गिफ्ट्स। गिविंग गिफ्ट्स, एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स। आप लोग बताइए, मैं लिख रहा हूँ। एक बर्थडे फेस्टिवल करा सकते हैं डिवोटीज का, जिसमें वो लोग डिवोटी को अप्रिशिएट गिफ्ट दे सकते। प्रोग्राम्स कर सकते हैं। और अगर कोई डिवोटी जैसे घर जाते हैं तो वो कुछ ला सकते हैं डिवोटीज के लिए, स्पेशली पर्टिकुलर डिवोटी के हिसाब से। सारे लोगों के पास मंदिर में क्या कहते हैं, लिस्ट रिलीज कर देते हैं सबके बर्थडे की, सबके इनिशिएशन डेट की, और सबके हाँ। मंदिर ज्वाइनिंग डेट की। कभी ना कोई तो देगा ही। टाइम टू टाइम कैंप्स कर सकते हैं जिसमें डिवोटीज जो है गिफ्ट दिया जा सकता है डिवोटीज को अप्रिशिएट करने के लिए, उन्होंने जो सर्विस की है उसके लिए। अच्छा है। हरि बोल, आप लिखते जाओ, प्री गुण प्रभु पूछेंगे देवेश। हाँ ये और एक चीज है कि हाँ, हम रोजाना बात कर सकते हैं, डिवोटीज को इनकरेज कर सकते हैं कि वो रोज अपने मंदिर के भक्तों की कुछ क्वालिटीज लिखें, क्योंकि वो गिफ्ट तभी देंगे जब उनके अंदर हृदय में ग्रेटफुलनेस होगी। कुछ क्वालिटीज लिखेंगे तो इंस्पिरेशन रहेगी। मतलब पर्सनली ना खुद के पास रखे ऐसा। हाँ, पर्सनली उनके पास रहे, मंदिर के कुछ भक्तों का एटलीस्ट रहे। बुक रीडिंग ग्रुप्स, या फिर जिनके सिमिलर इंटरेस्ट है वैसा ग्रुप बना सकते हैं, जैसे बुक रीडिंग ग्रुप हो गया, कीर्तन ग्रुप हो गया, प्रसादम ग्रुप हो गया, ऐसा टीचिंग ग्रुप। क्लासेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि ददाती प्रति गृहणाति को कैसे और अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। तो उसमें दोनों एस्पेक्ट्स समझा सकते हैं कि कैसे गिफ्ट्स एक्सेप्ट करना है वो भी, और देना है, जिससे भक्ति बढ़ सके। Hare Krishna bro, एक example I just wanted to quote that there are many devotees, वो जब कभी यात्रा पे जाते हैं तो वो क्या वो अलग अलग डिवोटीज के लिए जो वॉइस में जो नहीं जा पाए वो उनके लिए ना कुछ स्पेशल गिफ्ट लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल डेटीज की फोटोज पर्सनली सबके लिए, चाहे उनसे जूनियर हो या सीनियर हो, इक्वल इवन हमारे वॉइस में मतलब काफी जगह पे। तो लाइक आई थिंक दिस कैन बी वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ऑफरिंग एंड रिसीविंग गिफ्ट्स। मैंने ये लिखा है अभी तक, बर्थडे फेस्टिवल्स प्रोग्राम्स करा सकते हैं एक्सचेंजेस के लिए, जिसमें ड्यूटीज के अप्रिशिएट कर सकते हैं उनकी सर्विसेज के लिए, और सारे ड्यूटीज का बर्थडेज, इनिशिएशन डेट्स, टेम्पल ज्वाइनिंग डेट्स सबको पता रहेगा, तो उससे वो उस पर रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। और कहीं अगर घर जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं, तो डिवोटीज के लिए वो कुछ गिफ्ट्स ला सकते हैं जो नहीं जा पाए ऐसा। और डिवोटीज का अप्रिशिएशन, ओके, डिवोटीज का अप्रिशिएशन लिख सकते हैं। और बुक रीडिंग ग्रुप्स, कीर्तन ग्रुप्स हम वैसे बना सकते हैं, प्रीचिंग ग्रुप्स, मतलब सिमिलर इंटरेस्ट वालों को एक साथ, सिमिलर इंटरेस्ट ग्रुप्स।
और ये ज़्यादा क्लासेस का है, एक्सचेंजेस का, कि कैसे भक्ति इंक्रीज कर सकते हैं। तो जितना अच्छा फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग हो उतने अच्छे से वो उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। और एग्जाम्पल भी डाल दिया आपका एग्जाम्पल की कैसे यात्रा पे जाते हैं तो गिफ्ट्स ला सकते हैं। और कोई पॉइंट्स था क्या पॉइंट्स? एक और कर सकते हैं कि कभी कभी पर्सनली ड्यूटी से बात कर सकते हैं सेवा करते होते हैं, जान सके उनकी लाइकिंग क्या है, ताकि हम गिफ्ट्स उनको वो दें जो उनको पसंद है। अच्छा अच्छा, मतलब उनकी लाइकिंग्स का हमें पता चले। हाँ, ये भी अच्छा है। मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म दे दे जिसमें वो अपना लाइकिंग शेयर करें। Welcome back. So quickly, we have only 4 minutes and we have 3 GVCs. Let's see कौन कितनी अच्छी प्लानिंग कर पाता है। तो फर्स्ट ग्रुप का कौन है रिप्रेजेंटेटिव जिसने ददाती प्रति गृहणाति के ऊपर प्लानिंग किया है? देखते हैं। हमको लगता है ना इस कौन में ये चेंज होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए। अब आपको बनाया गया जीवीसी, देखते हैं आप क्या चेंजेस लेके आते हैं। और दूसरा पर्पस इज एक्सरसाइज का। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। चले कि एक्चुअली में हम लोग किस किस प्रकार से। हरे कृष्णा। लोग म्यूट कर लीजिए। हाँ यस, कौन है ग्रुप 1 का रिप्रेजेंटेटिव? हाँ ठीक है, यस प्रभु बोलिए। इस वजह मैं पॉइंट्स चैट पे शेयर कर देता हूँ, फिर अरे एक्सप्लेन। बोल दो बोल दो, बोल भी सकते हैं आप, दोनों यस, चीजें करिए। जैसे हमारा टॉपिक था ददाती प्रति गृहणाति, तो वी हैव प्लान कि हम बर्थडे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे उनको अप्रिशिएट कर सके उस टाइम पे। और ऐसे प्रोग्राम्स हम कर सकते हैं जिसमें डिवोटीज को उनके सर्विसेज के लिए एक्सचेंज मतलब अप्रिशिएट कर सकते हैं। और हम डिवोटीज का जैसे बर्थडे उनका कर। आपका आपका पॉइंट था ददाती प्रति गृहणाति। यस दान भाई, देना है और दान लेना है। मतलब कि चैरिटी देनी है, चैरिटी लेनी है। वो गिफ्ट्स देना, एक्सचेंजेस इस पर उसके लिए मतलब हम प्लेटफॉर्म्स और वैसे इवेंट्स कराएंगे जिसमें हाँ, एक्सचेंजेस हो। तो वो इवेंट्स क्या क्या कराएंगे आप? बर्थडे फेस्टिवल आपने कराया दान देने के लिए, और क्या? और प्रोजेक्ट जिसमें हम उनके जो सर्विसेज है उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं ऐसे ओके, इवेंट्स करा सर्विस के। अप्रिसिएशन फेस्टिवल कर दिया। और और ये और अच्छे से होने के लिए प्रोजेक्ट उनके बर्थडेज का इंफॉर्मेशन, इनिशिएशन डेट्स का इंफॉर्मेशन वो और तो सब हो टेम्पल। गया, वो तो सब हो गया। अभी और क्या करेंगे? वो तो बर्थडे में आ गया आपके। और जैसे अगर कोई डिवोटीज प्रोजेक्ट यात्रा पे जाते हैं और जो डिवोटीज नहीं जा पाए तो उनके लिए वो पर्सनली गिफ्ट्स ला सकते हैं या फिर वहाँ के कुछ मेमोरेबल आइटम्स ला सकते हैं जिनको उनको भी अच्छा लगेगा कि ओके। वहाँ से कुछ है ऐसा और चीजें। और जी हम ग्रुप्स बना सकते हैं जिनका सिमिलर इंटरेस्ट है जिससे कि एक्सचेंजेस और बढ़ जाएंगे, जैसे अरे बुक एक्सचेंज रीडिंग। बढ़ाने के लिए तो हम कर रहे हैं साथ सेशन आपका, आपको ददाती प्रति गृहणाति बढ़ाने के लिए बताना है बस। यस, सिमिलर इंटरेस्ट वाले ग्रुप्स बना सकते हैं, कीर्तन ग्रुप्स, प्रीचिंग ग्रुप्स ऐसा। तो फिर कीर्तन वाले के एक दूसरे को करताल मारेंगे ऐसे करके? कैसे करेंगे दत्ताती प्रति गृहणाति? वही तो क्वेश्चन है आपका। मतलब उनको और अपॉर्चुनिटी मिलेगा ब्रो जी इसमें का। और अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगा? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या करके कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा? हम बोलेंगे कीर्तन करने आना है तो पहले एक लड्डू खिलाना है सारे कीर्तन वालों को, फिर आना है, ऐसा? नया कीर्तन क्यों सुना सकते हैं, ऐसा सिखा सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। और और एक प्रोजेक्ट की जैसे इसका फिलॉसफी हम लोग इस पे क्लासेस कर सकते हैं कि ददाती प्रति गृहणाति और अच्छे से कैसे करें, ऐसे क्लासेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऐसा बोल देते आपकी रिकॉर्डिंग सुना देंगे, मेरे को अच्छा लगता है थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, आप क्लासेस खुद ले लेना, ठीक है। यस, और एक कैसा वो कर सकते प्रोग्राम जिसमें अपना डिवोटीज लाइकिंग शेयर करें, ऐसा जैसे कि लाइकिंग्स पता रहेगा तो और अच्छे से एक्सचेंजेस होंगे। डिवोटीज में बताएंगे। लगता है फेल हो गया मेरा क्लास देना। आपके ग्रुप के इतने अच्छे आंसर नहीं। ददाती मतलब बताना चाहिए था वो, कैसे आपको बोलना चाहिए था प्रोजेक्ट। हम फंड रेजिंग स्कीम रख सकते हैं, हम गीता डिस्ट्रीब्यूशन रख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग ऐसा रख सकते हैं कि जो भी मंदिर में आ रहा है ना, उसको ये अभी विंटर्स आ रहा है तो विंटर्स में एक दूसरे को क्लोथ शेयरिंग कर सकते हैं। जैसे क्रिसमस में लोग गिफ्ट शेयर करते हैं, हम लोग दिवाली पे प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन रख सकते हैं, प्रसादम शेयरिंग कर सकते हैं। न्यू ईयर पे किसी प्रोग्राम कर सकते हैं जिससे सारे लोग अपने अपने घरों में सबको इनवाइट करें और सबको एक दूसरे को प्रसाद खिला सके। ऐसे करके आपको बतानी चाहिए थे। प्रैक्टिकल। आप लोग जीबीसी में फेल हो गए हैं। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट ग्रुप। यस, नेक्स्ट ग्रुप कौन है जीबीसी का? देखते हैं। गुड़िया माँ कहती पृछति वाला कितने तरीके निकालता है। कौन है? Yes. हाँ यस। We can have dedicated time in festivals, like for devotees to share their heart with each other by forming small groups.
of their same interests. और फिर हम devotees can appreciate in each other in their special occasions. Like third one is like we share in our experience during yatra. So devotees can share their experience of yatras, and also we have like devotees during prasadam, they share their thoughts of their life, how their bhakti is going on. So we can have same time for prasadam so that devotees can share their heart. And last one is after a class, like devotees share their uh, thoughts about the class or their perception about the things, so that that can also be included in this. ये सब शेयरिंग शेयरिंग हो गया है। उसके अलावा कुछ और गुह्यम आख्याति पृच्छति कैसे होगा? ये तो सब लोग साथ में बैठेंगे ना, गुह्यम आख्याति होता है कुछ क्लोज फ्रेंड्स के बीच में होगा, तो कैसे होगा? उसको फैसिलिटेट करना है। तो जी, तो फिर जैसे कि जो यात्रा में होगा, जो लोग इंटीमेटली क्लोज होंगे, हाँ, वो वही फिर कह रहा हूँ आपस कि यात्रा आपने एक अच्छा बता दिया। यात्रा में हो जाएगा, प्रसादम वर्क टाइम। हो जाएगा, एप्रिसिएशन में हो जाएगा, और क्या होगा? प्रसादम टाइम में तो सब कॉमन बैठे हैं, वो गुलाब जामुन को अप्रिशिएट करेंगे, वो एक दूसरे को थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे। और क्या एवेन्यूज हो सकते हैं? अरे इतना बड़ा टेम्पल है, इतने सारे टेम्पल छोड़िए, कम्युनिटी भी है ना डिवोटीज की, उनको कैसे फैसिलिटेट करेंगे? और फिर जैसे जो जो लोग सिमिलर टाइप की सेवा पसंद करते हैं, उनको एक साथ रख सकते हैं, ताकि वो फिर गुड, उस सेवा में और करेक्ट। तो थॉट शेयर कर सकते ऐसी चीजें हमको पता करनी कि प्रभु जी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलर टाइप की सेवा वाले डिवोटीज को एक साथ सेवा में लगा सकते हैं, उनका एक साथ सेशंस कर सकते हैं, ट्रेनिंग सेशंस, जिससे वो एक दूसरे को जानेंगे एंड देन दे विल लर्न ईच अदर। उन सबको कॉमनली टुगेदर एक किसी यात्रा पे भेज सकते हैं, शॉर्ट शॉर्ट ग्रुप्स बना के। एंड वी कैन आल्सो मेक सम स्टडी ग्रुप्स बोल सकते हैं, डिवोटीज को साथ में आके स्टडी करिए, तो जब श्रीमद् भागवतम शेयर करेंगे देन दे विल डिस्कस विद ईच अदर। And similarly, what we can do is we can give them homework. We can give them some class of Prabhupada and ask them to present. जैसे अभी आप लोगों को प्रेजेंट करने के लिए बोला ग्रुप में, है ना? दिस ग्रुप वर्क विल आल्सो हेल्प देम, है ना, टू प्रेजेंट। ऐसे करके एवेन्यूज हमको ढूंढने हैं। ये एक्सरसाइज का पर्पस ये है कि हम सब लोग जो है, हम सब लोगों को अपना माइंड को ब्रॉड करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि मैं कैसे 6 एक्सचेंजेस कर सकता हूँ डिवोटीज के साथ। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज का पर्पस ये नहीं है कि ठीक है जो थोड़ा कुछ तो कराना है तो कुछ कराना, नहीं नहीं, इसके लिए आप लोगों को जीबीसी बनाया है कि आप लोग सोच पाए कि इस चीज को कितने सारी तरीके से कर सकते हैं, जिससे हमको लगे कि अरे मैं कहीं पे भी हूँ भले, लेकिन फिर भी मैं कर सकता हूँ। चलिए, थैंक यू। यस, नेक्स्ट थर्ड ग्रुप, मूंगते भोजते चाहिए, ये तो एकदम सिंपल है, इसको बता दीजिए जल्दी से, कौन है थर्ड ग्रुप? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे यस कृष्णा। प्रभु जी। हाँ, तो ये हमने डिस्कस किया। तो लाइक फर्स्ट पॉइंट वाज दैट द डिवोटीज come together at festivals and cook for the Lord. Like example is Kartik Yatra, Srila Prabhupada Acceptance Day is there. So that is one thing. And prasadam distribution that already happens at temples during the festival time. That is birthday festival. And birthday festival में if possible जो devotees का birthday है they cook for the rest of the devotees, those who are going to glorify them. And fourth is in the temples और at like वॉइस में जैसे होता है कि टेम्पल में भी ऐसी फैसिलिटी हम क्रिएट कर सकते हैं कि अगर कोई भी डिवोटी चाहे तो जाके बाकी डिवोटीज के लिए कुछ भी स्पेशल आइटम कुक कर सकता है. And fifth is availability for Journey Prasad by all the temples, voices, and bases, and we can make a software for that so that anyone can use an application as for Journey Prasad. And the sixth is we can, whenever we are going for yatra, we can bring for prasadam for those devotees who are not present in the yatra. And seventh is that it can be made that whenever someone's birthday is there, so there can be discounted prices in Govindas, so that that devotee can give feast to many devotees. गुड, ये थोड़े अच्छे जीबीसी हैं, इन लोगों ने थोड़ा अच्छा चीज किया है। तो थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू वेरी मच डिवोटिस। Guruji, in the case of Dadati Prati Grinati, can we have gift shops in the temple also? Like, if gift shops will be there, naturally devotees will think that, oh, I should give some gifts. ये भी अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है।
वेरी गुड, ऐसे जीबीसी चाहिए हमको जो एवेन्यूज निकालें। बाकी जीबीसी खाली देखने के जीबीसी है, ठीक है, चलिए। बट वेरी वेल ट्राई तो किया आप लोगों ने एटलीस्ट, इतना भी बेकार नहीं बोलेंगे। टू बिगिन विद अच्छा है, लेकिन और ट्रेनिंग की जरूरत है आप लोगों को। प्रभु जी, भूंगते भोजते में जैसे कोई जीबीसी या कोई डीओटी कोई यात्रा में जैसे जा रहे हैं और कोई जीबीसी आ रहा है, तो डीओटीज को फैसिलिटी दे मतलब उनको बता सकते हैं कि कोई अपने मनपसंद का कुछ बना के लाना चाहते हैं सीनियर डीओटीज के लिए, तो दे कैन ब्रिंग, तो इससे उनके प्रति आदान प्रदान होगा और प्रेम भाव बढ़ेगा। करेक्ट। भक्ति वृक्ष में ऐसे ही होता है, भक्ति वृक्ष में डिवोटीज खुद कुकिंग करके लेके आते हैं और एक जगह कलेक्ट होते हैं, पिकनिक होता है ना, जैसे स्कूल में पिकनिक होता था वैसा टाइप का, तो वैसा होता है। तो एक्चुअली मेन चीज ये है कि आप सब लोग उसके ऊपर कंटेम्पलेट करिए कि हम कैसे इसको और ब्रॉड कर सकते हैं। दैट इज अ मेन थिंग। डोंट थिंक कि मैं दूर चला गया या फिर कहाँ है वो डिवोटी, कैसे करेंगे, ये सब क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। रेदर वी शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एक्सचेंजेस एंड देन गो हेड आगे। मैं तो आज ये पूरा श्लोक खत्म करने वाला था, अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्लाइड्स बची हैं। तो ये 13 स्लाइड्स आज ही खत्म होने वाली थी, लेकिन ठीक है, अब हम अगले मंडे को करेंगे, बिकॉज नाउ दिस टॉपिक्स आर लिटिल शॉर्टर एंड बट ठीक है, आप लोगों ने इतना सब कुछ कर दिया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज कम रखेंगे, आप लोग अच्छे जीबीसी नहीं बन रहे, ठीक है। सो स्टॉप इट, थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय।